السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ میرے سلام کا جواب وفادار رسول دیں۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ اس ریکارڈنگ کو پورا سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ یہ گفتگو ہے اور اس سے بہت علم حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے میں بتاؤں، یہ وہابی ہے، اس کا نام ہے وزیر، اور یہ مجھ سے گفتگو کرنے آیا کیونکہ میں نے ان وہابیوں کے گروپ میں ایک چیلنج کیا کہ جتنے وہابی اور دیوبندی ہیں سب کے سب حدیث کی روشنی، قرآن کی روشنی میں خارجی ہیں۔ تو اس نے ہمت کی، پہلے اس نے ہمارے ایک دوست احمد رضا بھائی کو فون لگایا تو انہوں نے مجھے کال پہ لیا، تو جب میں نے اس سے ایک سوال کیا یہ وہاں سے بھاگا۔ اس کے بعد اس نے ہمارے ایک دوسرے بھائی یوسف بھائی کو کال لگایا تو یوسف بھائی نے مجھے لائن پہ لیا، تو میں نے اس کو وہاں پہ پکڑا، اس سے گفتگو چالو ہوئی۔ اس نے کہا کہ ہم خارجی کیوں ہیں؟ تو میں نے اس سے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتا کہ قرآن میں کافروں کے تعلق سے نازل ہونے والی آیت کون کون سی ہے؟ اس نے نہیں بتایا۔ پھر میں نے اس کے سامنے بخاری شریف کی حدیث پیش کی اور اس کے باب کا نام ہے خارجیوں کے قتل کا بیان۔ تو اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ خارجی ہیں وہ لوگ جو قرآن میں کافروں کے تعلق سے نازل ہونے والی آیتوں کو مسلمانوں پہ چسپاتے ہیں۔ اب جو مشرکین مکہ تھے وہ کعبے میں جو 360 بت رکھے تھے ان سے مانگتے تھے، ان کو مددگار سمجھتے تھے اور ان کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے۔ اب لات، منات اور حول، تو یہ ان کو خدا سمجھتے تھے اور انہی کی عبادت کرتے تھے۔ تو ان کے تعلق سے جو قرآن میں نازل ہوئی ہے آیتیں، اس کو ایمان والوں پہ یہ وہابی دیوبندی چسپاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ جس آیت میں من دون اللہ آتا ہے وہ آیت بتوں کے تعلق سے ہوتی ہے اور اس کو یہ لوگ ایمان والوں پہ چسپاتے ہیں کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ تو میں نے اس کو پکڑا، میں نے کہا کہ تو من دون اللہ کی تفسیر تو اپنے گھر سے کر دے، تیرے حافظ ابن کثیر نے من دون اللہ کی تفسیر کیا کی ہے تو اس نے نہیں بتایا۔ اب جس آیت میں من دون اللہ آتا ہے وہ آیت بتوں کے تعلق سے ہوتی ہے، تمام ائمہ کا قول تفسیر میں موجود ہے، اور یہ آیت متشابہات ہے اور متشابہات سے عقیدہ بنانا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ ہمیں ان کے راستے پہ تو چلا جن کے اوپر تیرا انعام ہے، نہ کہ ان کے راستے پہ جس پہ تو ناراض ہوا، غضب کھایا، اور جو گمراہ ہوئے ان کے راستے پہ ہمیں نہیں چلا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام کس پہ ہے؟ انبیاء پہ، صحابہ پہ، اولیاء پہ، اور غضب کس پہ کھایا؟ لات، ملات جو کعبے میں بت رکھے تھے ان پہ۔ اب ان کے وسیلے سے اگر کوئی دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ تو جناب والا یہ وہابی دیوبندی ان کافروں کے تعلق سے نازل ہونے والی آیتوں کو ایمان والوں پہ چسپاتے ہیں۔ دیکھیے کس طریقے سے اس کی دھجیاں اڑائی اور وہابیوں اور دیوبندیوں کو اس حدیث سے خارجی ثابت کیا۔ الحمدللہ گفتگو پوری سنیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، اور جو نئے بھائی ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو ان کے پاس جلد سے جلد پہنچ جائے۔ السلام علیکم۔ یہ ہے کہ ابھی ادھر سے ادھر بھاگ گیا۔ ہیلو وزیر، بولے جمشید بول لے۔ ابھی تو ادھر تھا احمد رضا کے پاس، تو ادھر کیسے بھاگ گیا رے؟ ہو گئی بات، اب میں بولوں؟ نہ پہلے مجھے بتا کہ اہل سنت والجماعت جماعت بنتی ہے جمع سے۔ آج کی تاریخ میں تیری جماعت میں تیرے عالم کون ہے؟ ان کا نام بتا۔ یوسف صاحب جی جمشید کو سمجھائے کس پر بات کرنی ہے۔ نہیں بات تو اس پہ کرے گی، پہلے اپنی جماعت کو حق تو ثابت کر۔ یوسف صاحب، ہاں جمشید بھائی یہ فون کیے تھے ہمارے پاس، وہ خارجیوں والی جو آیت نہیں ادھر ادھر والی، اس پہ یہ بات کرنا چاہتے تھے۔ خارجی والی آیت؟ ارے وہ جو حضرت عبداللہ ابن فرماتے ہیں انہو کانا یرہم شرارہ والی، ہاں یہ اسی تعلق سے بات کرنے کے لیے ہمارے پاس فون کیے، تو ہمارے پاس وقت نہیں تھا تو وہاں آپ کے پاس لگا دیے۔ چلو ٹھیک ہے، بات کرو، اس میں کیا بات کرنا چاہتے ہو؟
चलें बात करें शायद। देखो यूसुफ साहब, आप इस चीज के जिम्मेदार रहेंगे कि उधर से भी शोर शराबा ना हो, बदकलामी ना हो। अभी जिस तरीके से तुम बदकलामी करके, एक मिनट, जिस तरीके से तुम बदकलामी करके अभी भागे हो वो दोबारा यहाँ मत करना। हाँ हाँ, दोनों लोग वसूल के पाबंद। एक मिनट रुको, अभी जो ये बदकलामी करके भागे हैं, आला हज़रत को काफिर काफिर कह के भागे हैं, तो यहाँ करेंगे तो इनकी शिकस्त होगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो आप मुझे बताइए, सबसे पहले मुझे बताइए अपना नाम बताइए, अपना नाम बताइए, अपनी जमात बताइए, अपना मसलक बताइए। यूसुफ साहब, आप इस चीज के जिम्मेदार रहेंगे कि जब मैं बोलूं तो ये नहीं बोलेगा। अरे सुनो मेरी बात, अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात रहेंगे, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, बात तो सुनो। यूसुफ साहब से बात कर रहा हूँ मैं, जमशेद से बात नहीं कर रहा हूँ। अरे तो यूसुफ साहब से बात कर लो फिर। अरे दोनों लोग आपस में समझ लो भाई, खलते में बहस नहीं होनी चाहिए, कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए बस। मैं कह रहा हूँ मेरा नाम जमशेद अली कादरी, मैं सुन्नी हनफी बरेलवी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा माखज, जो मेरा माखज है कुरान हदीस इस्मा कयास, और जो मेरा मनहज है, मेरे आज के अकाबिर जो है उनकी बात मेरा मनहज है, और कुरान हदीस इस्मा कयास मेरा मनहज है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपका नाम, आपकी जमात का नाम, आपका माखज और आपका मनहज क्या है वो बता दें, फिर बात शुरू करते हैं। यूसुफ साहब, अभी इन्होंने ये बोली है कि इनका माखज जो है वो कुरान हदीस इस्मा और कयास। मेरा माखज मेरे अकाबिर का कलम है, मेरा माखज मेरे अकाबिर की बात, मेरे अकाबिर की किताब है। तो गलत क्यों बोल रहे हो, गलत क्यों बोल रहे हो? बीच में बोल रहा है, फिर बीच में, यानी कि कुरान हदीस तेरा माखज नहीं है। मेरा माखज कुरान हदीस इस्मा कयास मैंने बताया। तो मैं क्या गलत बोला? मैं गलत तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ना, तुमसे भी तो बताओ अपना। आप अपना बताइए ना वजीर मोहम्मदी साहब, अपना माखज बताइए ना। हाँ, वो अपना माखज बताए नहीं, मैं इस पर ही अगर बहस कर दूं ना। अभी बहस की बात ही नहीं है, बहस बाद में करना। मुकल्लिद है, कोई मुज्तहिद नहीं है ये। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मैं मुकल्लिद हूँ तभी तो मैं इज्मा कयास बोल रहा हूँ, जाहिल हो क्या? जाना ही नहीं चाह रहा मैं। सुनो सुनो, एक मिनट, वजीर साहब सुनो, वजीर साहब खारजी बोल रही है लोग। हाँ वजीर साहब सुनो, कह रहे यही बात करना चाहूंगा मैं इस बिना पे कहूंगा, अभी मैं वाजे करूंगा। मैंने कहा कि मैं मुकल्लिद हूँ तभी तो मैंने इज्मा और कयास बोला है। नहीं, मुकल्लिद कयास करेगा? बिल्कुल, मुकल्लिद नहीं तो क्या तू करेगा? क्यों करेगा फिर मुकल्लिद? नहीं, मुकल्लिद कयास नहीं करेगा तो तुम करोगे, ये बताओ। मुकल्लिद कयास नहीं करेगा। एक मिनट, मुकल्लिद मुज्तहिद के कयास का। अबे मुकल्लिद ये कयास करेगा कि जो सामने वाला आलिम है उस आलिम की सनात क्या है, उस आलिम का दर्जा क्या है। अभी देखे मैं पहले ही बोल रहा था, इस पर बहस होगी। तो तेरा माखज बताना, मनहज बताना, तू भाग क्यों रहा है? बताइए वजीर मोहम्मदी साहब, जैसे इन्होंने बताया है कुरान हदीस, अपना माखज और मनहज बता, भाग क्यों रहा है तू? तभी तो मैं साबित करूंगा ना कि अहले हदीस, सुनो, तभी तो मैं साबित करूंगा अहले हदीस इस अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत वल जमात, अहले हक, अहले हदीस के हूँ, ठीक है। अब इस पर बात होगी। दूसरी तरफ माखज और मनहज क्या है, माखज और मनहज क्या है? अहले हदीस जो है ना ये खारजी है, बिल्कुल बिना पर खारजी बोल रहे। हाँ, तो पहले माखज और मनहज बताएगा तब ना खारजी साबित करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत वल जमात, अहले सुन्नत वल जमात, ये तो तुम्हारी जमात हो गई। माखज और मनहज क्या है तुम्हारा? कुरान हदीस के मानने वाले। और कुरान हदीस मानते हो, इज्मा मानते हो? अल्हम्दुलिल्लाह, इज्मा भी कुरान हदीस से साबित है। एक मिनट, इज्मा कयास मानते हो? अब मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। अल्हम्दुलिल्लाह, चलो, इज्मा कयास को तुम मानते हो, कुरान हदीस तुम्हारा क्या है? मनहज है ना? तो चलो अब आप मुझे बताओ कि अगर कुरान हदीस तुम्हारा मनहज है और इज्मा को तुम मानते हो, कयास को तुम मानते हो, तो आज की तारीख में 200 साल पहले किस इज्मा ने अपने आप को अहलुल हदीस कहा, ये बताओ। देखो यूसुफ साहब, क्या भागना नहीं वजीर भाई, भागना नहीं वजीर भाई, भागना नहीं इस चीज के वजीर भाई, भागना नहीं। बताइए 200 साल पहले आप किसी ने अपने को ना ये 1856 से पहले। एक मिनट रुको, मैं बरेलवियत साबित करूंगा, मानने वाले मैं बरेलवियत साबित करूंगा, नहीं करना चाह रहा हूँ ना मैं बरेलवियत को साबित करूंगा, मैं हुजूर से लेकर अभी तक बरेलवियत साबित कर दूंगा। लोग किस्म के थे। देख आ गया ये बदतमीजी पे।
सूफी शैतान मरदूत लोग थे। आ गया ना बदतमीजी पे। वजीर मोहम्मदी साहब, बता रहा हूँ मैं, आप जैसे हमको चैलेंज कर रहे थे कि जिस अबे मैं सुनो सुनो चैलेंज नहीं करा मैं, झूठ मत मैं पूरी दुर्रियत अहले हदीस को चैलेंज करता हूँ कि बुखारी शरीफ की इस हदीस पे मैं खारजी साबित करूंगा। रिकॉर्डिंग में मौजूद है। हो गया ना खारजी साबित, अहले हदीस खारजी है, खारजी साबित हो गया ना। 200 साल पहले टॉपिक पर मत जाऊंगा। सुनो, मैं ये पूछना चाहूंगा किस बिना पर अहले हदीस पर खारजी का फतवा लगाता है? मैंने कहा ना, सुनो सुनो, मैं वही बता रहा हूँ। जमशेद पादड़ी जो है ये देख, उधर की बातें करेगा। आ गया बदतमीजी पे, जमशेद पादड़ी एक टॉपिक पर बात आ गया बदतमीजी पे। मैं सिंपली जो पूछा मेरे को वो बना सिंपली। इसीलिए कहता हूँ अहले हदीस की माँ ने ऐसा बच्चा नहीं पैदा किया जो सलीके से आके अपने आप को हक साबित करके चला जाए। मैं इसलिए बोलता हूँ ना, बिदती मुशरिक कब्र के पुजारी आ गया ना औकात पे, खून में आ गया ना औकात पे। तुझे पता है 200 साल पहले तेरा वजूद नहीं था, और आज की तारीख में तुम बुतों के ताल्लुक से नाजिल होने वाली आयतों को मुसलमानों पे चस्पाते हो, तो इस हदीस की रोशनी में तुम खारजी हो गए। शिबली रसूलुल्लाह के कलमे पढ़ने वाले हैं, ये देख, काबतुल्लाह के कलमा पढ़ने वाले, इब्ने तैमिया को छमछम नचाने वाले, इब्ने तैमिया को छमछम नचाने वाले, इब्ने तैमिया की पूजा करने वाले, सिद्दीक हसन भोपाली की मरगत को पक्का बना के पूजा करने वाले साले मुजद्दिद, बात थी, रस्म रिवाज थी, ये देख अभी ऐसी बड़बड़ा के ये भागा है वहां से। बरेलवी धर्म बनाने वाले। सुन, अब एक मिनट सुन ले, मैं तुझे खारजी साबित कर दूंगा। तू बिल्कुल नहीं, तू 1 मिनट सुन ले। हाँ, मैं इसी टॉपिक पे हूँ, इसी टॉपिक पे हूँ। वजीर मोहम्मदी साहब चुप रहिए। 1 मिनट में खारजी साबित कर दूंगा, 1 मिनट में खारजी साबित कर दूंगा, लेकिन यूसुफ साहब आपको जो है ना, 1 मिनट में खारजी साबित कर दूंगा। 1 मिनट लगेगा बस, 1 मिनट लगेगा बस। अरे भाई ये खारजी साबित कर रहे हैं ना, 1 मिनट लगेगा बस, 1 मिनट लगेगा। आप बोलिए, इसको बोलो पहले। 1 मिनट लगेगा खारजी साबित करने में, 1 मिनट लगेगा। बोल रहा हूँ मैं, बड़े आराम से बोल रहा हूँ कि जमशेद कादरी को बोलो ये वक्त तय कर ले कि 1 मिनट ये बोले, 1 मिनट मैं बोलूं। चल 1 मिनट में बोलता हूँ, 1 मिनट पे बोल। दूसरी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं दूसरी तरफ नहीं जाऊंगा, चल इसी पे बोलता हूँ, ठीक है। जब तू बोलेगा मैं खामोश होगा, जब मैं बोलूंगा तू खामोश रहेगा। हाँ, जी ये सही रहेगा, ये सही रहेगा, सही बात। आप सुनिए, आप सुनिए, आप सुनिए, आप सुनिए, 1 मिनट आप बोलने दे, आप बोलने दे, आप बोलने दे। भाई बात करने दो ना, ठीक है। आप जिम्मेदारी लेगा यूसुफ साहब। चलिए बात आगे बढ़ाइए, ऐसे बात नहीं हो पाई, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अब जो सिंपली मेरा सवाल है, इसको बोलने दो, इसको सवाल करने दो। ये है कि बरेलवी लोग यानी कि आप, ठीक है, आपने अहले हदीस को खारिज कहा, तो बात यही है कि आप किस बिना पर अहले हदीस को खारिज कह रहे, ये बताएंगे आप। चलिए आप खामोश रहिए, जवाब दो। हाँ, 1 मिनट बोलना, इसके हाँ। बाद जब बात यूसुफ साहब 1 मिनट हो जाए तो बता देना। करूंगा, और जब मैं शुरू करूंगा तो ये जमशेद कादरी खामोश रहेगा। ठीक है यूसुफ साहब, मैंने इसका मनहज पूछा, इसने कहा कि इसका मनहज है कुरान हदीस इजमा कयास। ये देखो फिर भाग रहा, कहाँ भाग रहा है, मेरे को बोलने दो। जी पर बात कर, खामोश, मुंह बंद कर, बोलना नहीं। बीच में अगर बोला तो फिर तू देखिए तेरी शिकस्त होगी। इसने बोला यूसुफ साहब कि इसका मनहज है इजमा कयास और कुरान हदीस। इजमा कयास कुरान हदीस, ध्यान से सुनना। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं वो खारजी है कौन, जो कुरान में बुतों के नाजिल होने वाली आयत को मुसलमानों पे चस्पाते हैं। आज से 2 साल पहले इस आयत को किसी जमात ने नहीं चस्पाया था, और आज से 200 साल के बाद ये अहलुल हदीस जो इन्होंने अंग्रेजों से अपना नाम रजिस्ट्रेशन करा के आए, ये चस्पाते हैं। तो इस हदीस की रोशनी में ये आ गए, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इसने कहा कि ये कयास को मानता है, तो कयास को मानने के लिए 1 मिनट, मुबन कयास को मानने के लिए इसको अपने आलिम और अपने अकाबिर की शिनाख्त करनी होगी, जो ये कर नहीं सकता। अगर ये अपने आलिम और उसकी शिनाख्त करेगा तो इसके किस आलिम ने, चाहे इब्ने तैमिया हो या इब्ने कसीर हो, कि कुरान की आयत को मुसलमानों और कब्र वालों पे चस्पाया है। अल-बिदाया वल निहाया 20 जिल्दों में हो चुका है। अभी 40 सेकंड हुआ है यार। अल-विदाया वल निहाया में 20 जिल्दों की किताब है, उसमें एक भी इब्ने कसीर ने बुतों के ताल्लुक से नाजिल होने वाली आयत को मुसलमानों पे नहीं चस्पाया। ये आज के नाम निहाद अहले हदीस चस्पाते हैं, और इस हदीस के ताल्लुक से, इस हदीस की रोशनी में ये खारजी होते हैं। तो बीच में बोलेगा तो मैं कैसे बोलूंगा लल्ला? तू बीच में बार बार बोलेगा तो कैसे बोलेगा? तूने बोला ना तेरा इज्मा और कयास है, तो इज्मा के लिए जमात चाहिए,
और कयास के लिए भी जमात चाहिए बाबू, तो तेरी जमात ही नहीं है। और ये जो नई जमात आई है ये अहलुल हदीस है ही नहीं, क्योंकि अहलुल हदीस के जो पुराने अकाबिर हैं उन्होंने अपनी कभी भी बुतों के ताल्लुक से नाजिल होने वाली आयत को एक मिनट मुसलमानों पे कसवाया ही नहीं। चल अब साबित कर तू। चलो ठीक है, सबसे पहली बात जमशेद कादरी ने कहा कि साहबी रसूल की हदीस है कि खारजी क्या करते थे, बुतों वाले आए थे मुसलमानों पर फिट करते थे। इसके जिम्मेदारी है अब ये हदीस बताए बुतों वाला लफ्ज, ठीक है, ठीक है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात ये है, अब ये बोल रहा कि हम बुतों वाली आयतें फिट करते हैं। हम बुतों वाली नहीं, हम वो आयत फिट करते हैं जिसमें लफ्ज मिन दूनिल्लाह है, यानी कि अल्लाह के सिवा। और अल्लाह के सिवा में अंबिया भी आते हैं, औलिया भी आते हैं। और मैं इसकी एक दलील देता हूँ, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 79 में अल्लाह ताला कहता है किसी ऐसे इंसान को जिसे अल्लाह ताला ने किताब व हिकमत और नबूवत दी, ये लायक नहीं कि फिर भी तुम वो लोगों से कहे कि तुम अल्लाह को छोड़कर मेरी बंदगी कर लो, यानी कि मिन दूनिल्लाह। यहाँ पर अल्लाह के सिवा, अल्लाह को छोड़कर, तो इसमें कौन आ गए? ऐसे इंसान जिनको किताब व हिकमत और नबूवत दी है। ये कौन है? किताब व हिकमत नबूवत, ये अंबिया अलैहिस्सलाम है। इसकी मैंने दलील दी है। नंबर एक ये, ठीक है। आयत गलत पढ़ी है इसमें, पहले आयत का तर्जुमा गलत किया है। पहले इसने आयत का तर्जुमा गलत किया है। वहाँ पे अंबिया का है ही नहीं जिक्र, वहाँ पे अंबिया का जिक्र नहीं है। क्या चीज? जो आयत तुमने पढ़ी उसका तर्जुमा गलत किया है। कौन सा? मिन दूनिल्लाह लफ्ज नहीं है उसमें। मिन दूनिल्लाह तो है, मिन दूनिल्लाह क्या आता है, क्यों आता है, ये किसका फेगा, ये भी बताओ। अल्लाह के छोड़कर। एक मिनट, हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोलेगा ये, ठीक है, ठीक है, मैंने बोला टाइम खराब कर रहा है मेरा। ठीक है, ठीक है। हम वो आयतें फिट करते हैं जिसमें मिन दूनिल्लाह है। तो मिन दूनिल्लाह में यहाँ पर उन लोगों को जिन्हें किताब हिकमत और नबूवत दी है। दूसरी बात, पहले ये बुतों वाला दिखाएगा हदीस में, दूसरा ये। तीसरी बात ये है कि बुतों वाली आयत तो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहब पर फिट किया है। यानी कि ऐसा अगर काम करेंगे जो मुशरिकीन से मिलता हो तो वो आयतें फिट हो सकती है। खुद इसके गवाही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस से मिलती है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा किराम ने कहा था, मुशरिकीन को देखकर उन्होंने तलवारी अपनी झाड़ों पर लगाई थी। सहाबा किराम ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए भी एक ऐसे जाते अनुवाद बनाए कि हम भी इनसे, ठीक है, तबर्रुक हासिल करें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुमने वही बात की जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने फिरौन से निजात पाकर कहा था कि जब वो माबूदान को देख रहे थे झूठे कि लोग बुतों की पूजा करें, तो मूसा अलैहिस्सलाम को हमारे लिए भी एक बना दे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद साहब पर बुतों वाली आयतें फिट की, यहाँ पर बुतों वाली आयतें फिट की। लेकिन मुझे ये बताएगा कि वो साहब रसूल की हदीस में कि वो बुतों वाली आयतें, ये लफ्ज है इसके बुतों वाली आयतें, ये बताएगा। चल बोल। मैं इसको अपना आधा मिनट दे रहा हूँ, है ना? हेलो, मैं इसको आधा मिनट दे रहा हूँ। एक मिनट, हाँ मैं तुझे, अरे मैं तुझे अपना आधा मिनट दे रहा हूँ कि जो ये हदीस है, जिल्द अव्वल, बाप का नाम है खारजियों के कत्ल का बयान। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि वो लोग खारजी हैं जो कुरान में बुतों के नाजिल होने वाली आयत को मुसलमानों पे चस्पाते हैं। हाँ ये लफ्ज दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। तो मुझे ये बता कि वो कुरान में कौन सी आयत है जो बुतों के ताल्लुक से है? कुरान में कितनी आयतें हैं जो बुतों के ताल्लुक से है, जो मुसलमानों पे चस्पाता है? हम वो आयतें इस हदीस के, हाँ तो वो आयत बता मुझे। मैंने अपना आधा मिनट में अंबिया भी आते हैं। अरे एक मिनट रुको, जिसका तूने तर्जुमा किया वो तर्जुमा तूने गलत किया, पहली चीज। दूसरी चीज, आधा मिनट में अपना दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यूसुफ साहब तू करेगा। वजीर साहब अब आप बात सुनिए, आपका टाइम खत्म हो चुका है भाई। आधा मिनट इसने यूसुफ साहब, मैं दे रहा हूँ ना आधा मिनट। कुरान में मुझे वो आयत दिखाओ जो बुतों के ऊपर नाजिल हुई है, वो आयत बताओ कौन कौन सी है। इसने मुझे आधा मिनट दिया कि नहीं दिया? जी वजीर मोहम्मद साहब दिखाइए। मुझे आधा मिनट दिया ना यूसुफ साहब? मैंने इसको आधा मिनट अपने सवाल का जवाब देने के लिए कहा है या अपना इसका सवाल रखने के लिए कहा है? अरे तो उसी का जवाब दे रहा हूँ ना मैं। मुझे वो बुतों के ताल्लुक से आयत बता, बुतों के ताल्लुक से वो आयत बता। गड़बड़ी नहीं करूंगा। बुतों के ताल्लुक से वो आयत बता, बुतों के ताल्लुक से वो आयत बता कि जो कुरान में है। मैं कह रहा हूँ ये सबसे पहले हदीस में बता दे लफ्ज़ बुत, ठीक है? काफिर का लफ्ज नहीं होगा, बुत का लफ्ज होगा, ये बताएगा। अच्छा ठीक, चलो ठीक, एक मिनट, इसने क्या बोला कि काफिर का लफ्ज नहीं होगा? ठीक है, हेलो, हाँ चलो ठीक है, यहाँ तुम और फंस गए। चलो जो आयत काफिरों के ताल्लुक से नाजिल हुई वो बताओ।
बुतों का ना अब तुम यहाँ खुद फंस गए। जो आयत काफिरों के ताल्लुक से नाजिल हुई है वो बताओ कुरान में कहाँ है, कौन सी आयत है वो? पूरी कुरान शिर्क के रद में है, तो वही मैं वही पूछ रहा हूँ, वो कुरान की आयत बताओ जो काफिरों के लिए नाजिल हुई, जो तुम मुसलमानों पे चस्पाते हो, वो बताओ। अब वो कुरान में जिक्र है कि अरे मैं आधा मिनट तुझे दिया हूँ तो क्यों खराब कर रहा है मेरा? मैंने कहा कि कुरान में वो आयत मुझे बता जो काफिरों के ताल्लुक से नाजिल हुई, जो मुसलमानों पे चस्पाई जाती है। चल बता। साहब इधर उधर की बात मत करिए। भागने नहीं दूंगा बेटा, खूंटा यहीं गाड़ दूंगा। मैं भागने नहीं दूंगा, मैं तुझे खुद नहीं भागने दूंगा, भागने नहीं दूंगा तुझे मैं खुद नहीं भागने दूंगा। वो आयत मुझे जल्दी बता, जल्दी बता। एक आयत पढ़, बुतों वाला लफ्ज बता। एक आयत पढ़। अब सुन, दूसरी बात ये है, आधे मिनट में अगर तू नहीं बताया पाया तो तेरी शिकस्त। बताना तुझे है, तू बताएगा कि वो कौन सी आयतें हैं जो काफिरों पे नाजिल हुई हैं और जो तुम लोग काफिरों की आयतों को मुसलमानों पे चस्पाते हो। वजीर साहब बताइए वो तू बताएगा बेटा, में नाजिल हुई है, बताइए वजीर मुझे साहब। नहीं तेरी जिम्मेदारी है। तूने कहा ना कि तू मिंदूनिल्लाह पढ़ता है, मिंदूनिल्लाह की शरह उठा, सुन तफसीर उठा, तफसीर कुर्तुबी, तफसीर जलालैन, तफसीर इब्ने अब्बास, सारी शरह में ये मौजूद है कि जिसमें मिन दूनिल्लाह आता है वो आयत बुतों के ताल्लुक से होती है। लेकिन तेरे इब्ने कसीर ने भी अपनी तफसीर में यही लिखा है, जाहिल। इतना पूछ रहा हूँ कि फंस गया भाभी, मुझे हदीस में भाभी खुद मिन दूनिल्लाह बोल के फंस गया। तो ये बता रहा ही नहीं। ना सब बताएगा यूसुफ भाई वही वजीर साहब बताइए। मुझे एक आयत ये बता दे कि इस हदीस में जो काफिर का वर्ड है, चल बुत का नहीं है काफिर का है, कि काफिरों पे नाजिल होने वाली आयतों को मुसलमानों पे चस्पाते हैं, तो वो आयत कौन सी है? वो कौन सी आयत है जो काफिर के बारे में नाजिल हुई है, बताइए। भागेगा वहां तभी ये वहां भी भागेगा। सुन वो आयत कौन सी है, सुन वो आयत की डिटेल सुन वो आयत की डिटेल सुन, वो आयत की डिटेल सुन। एक आयत बता देता हूँ तुझे, सूरह हज आयत नंबर 73 पहली। मैं बता तो रहा हूँ, सूरह हज आयत नंबर 73। ये बुतों के ताल्लुक से, ये काफिरों के ऊपर है, तुम मुसलमानों पे चस्पाते हो। अल्लाह फरमाता है, सुनो तुम तो एक किस्सा बयान किया जाता है, कान लगा के सुनो। जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो उनकी असल ये है कि वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। ये आयत काफिरों पे नाजिल हुई, तुम मुसलमानों पे चस्पाते हो। आज के 200 साल के अहले हक्कू, मुझे तू बुतों वाला लफ्ज सुन, मुंह बंद कर तू बता पहले। यूसुफ साहब इसका मुंह बंद करो। वजीर साहब आप इतनी जोर से बकवास कर रहे हैं। आप जमशेद साहब ने पूछा है कि वो कौन सी ऐसी आयत है जो कुफ्फार के बारे में नाजिल हुई है, आप बताइए ना। जमशेद कादरी ने मुझे अपना इसका मुंह बंद करो, मैंने ले लिया, अब इसका मुंह बंद करो। हो गया, मेरी बारी है तो बीच में बोल रहा है। मेरी बात तो सुन पहले। आधा मिनट मैंने तुझे दिया और ये भी कहा था कि नहीं बताएगा तो तेरी शिकस्त होगी। आधा मिनट तूने मुझे दिया, हाँ तो ये भी तो बोला था नहीं बताएगा तो तेरी शिकस्त होगी, तो अब वो तो हो गई। आधे मिनट के बाद मैंने बता दिया कि सूरह हज आयत नंबर 73 काफिरों के ऊपर नाजिल हुई है, जिसे तुम लोग आजकल अंबिया और इलिया पे चस्पाते हो। की है कि हम तो मिंदूनिल्लाह वाली आयतें फिट करते हैं। तो बेटा मिंदूनिल्लाह का मैंने तुझे तफसीर भी बता दी, तफसीर मदारिक, तफसीर बेजावी, इब्ने कसीर में भी इब्ने कसीर ने कहा कि जो आयत मिंदूनिल्लाह की है, जिसमें मिंदूनिल्लाह आ जाए वो बुतों के ताल्लुक से है, बुतों के ताल्लुक से है। और तूने बोला तेरा मिनहज इजमा भी है, कयास भी है, तो अगर इजमा का ये इजमा हो गया कि मिन दूनिल्लाह जो है वो बुतों के ताल्लुक से काफिरों के नाजिल होने वाली आयत है, तो ये तो इजमा से साबित हो गया कि काफिरों के नाजिल होने वाली आयत को तुम मुसलमानों पे जज्बा रहे हो। तो तू इजमा के लायक रहा कहाँ? तू तो इजमा से बाहर हो गया, तेरा मनहज तो बातिल साबित हो गया। तूने बोला कि तेरा मनहज है कुरान हदीस इजमा कयास, अब इजमा हो गया। तफसीर बेजावी, तफसीर मदारिक, तफसीर इब्ने कसीर, तफसीर इब्ने अब्बास, सारी तफसीरों में ये है कि ये बुतों के ताल्लुक से आयत है, काफिरों के ताल्लुक से है। अबे मिन दूनिल्लाह की तफसीर क्या है बता? सुन मिन दूनिल्लाह की तफसीर क्या है? मिन दूनिल्लाह की तफसीर बताइए वजीर। अरे वजीर साहब मिन दूनिल्लाह की तफसीर क्या है? मैं सिंपल ही पूछ रहा हूँ, मिन दूनिल्लाह की तफसीर क्या है? मैं तो सिंपल ही तेरे को बोल रहा हूँ, तू हदीस। तो मैं सिंपल तेरे को बोल रहा हूँ, मिन दूनिल्लाह की तफसीर बता। मोहम्मदी साहब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मिन दूनिल्लाह की तफसीर बताइए, आवाम के सामने पेश करूंगा। मैं यूसुफ साहब जमशेद को खामोश कराओ।
पहले जमशेद को मैं खामोश हूँ। मिन दूनिल्लाह की तफसीर इजमा से, इजमा से तूने इजमा माना है ना, इजमा से साबित कर, गौर फरमाइएगा आप लोग। इजमा से साबित करेगा। सुनो यूसुफ साहब, जमशेद को भागने नहीं दूंगा। यूसुफ साहब, मैं सिंपल ये बोल रहा हूँ। इसने बोला ना इजमा, इजमा अल्हम्दुलिल्लाह ये मानता है, यूसुफ साहब, इजमा से ही साबित करेगा मिन दूनिल्लाह की तफसीर। यूसुफ साहब सुने। जी सुन रहा हूँ। वजीर मोहम्मद साहब, आपने कहा कि हम इजमा को मानते हैं, तो आप इजमा से साबित करिए मिन दूनिल्लाह की तफसीर। पहले ये शर्त पैदा हुई थी कि 1 मिनट ये बात करेगा, 1 मिनट में। हाँ, इसने मुझे सही है। आधा मिनट दे दिया। आधा मिनट देने के टाइम मैंने कहा था ना कि अगर तू नहीं बता पाएगा तो तेरी शिकस्त होगी। फिर बीच में बोल रहा। वजीर मोहम्मद साहब, आप जो है मिन दूनिल्लाह की तफसीर अवाम के सामने पेश फरमाएं। अच्छा, मैं यूसुफ साहब खामोश हूँ, 1 मिनट मैं इसको दे रहा हूँ पूरा मुकम्मल। ये मुझे मिन दूनिल्लाह की तफसीर बताएगा इजमा से। ठीक जमशेद कादरी, मैं बोल रहा हूँ जमशेद कादरी भाग जाएगा। ठीक, 1 मिनट दोनों लोग चुप हो जाएं। पूरे उसूल तोड़ रहा। अरे भाई 1 मिनट चुप हो जाए, मेरी बात सुने। जमशेद भाई आप खामोश हैं, और ये जो है वजीर मोहम्मदी साहब जो है ये मिन दूनिल्लाह की तफसीर इजमा से बताएं भाई। चलिए, अब जमशेद कादरी को खामोश कराए। सबसे पहली बात, जमशेद कादरी ने हदीस में कहा था अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की कि उसमें लफ्ज़ है बुतो वाला। मैंने ये सवाल किया कि मुझे हदीस से बता दे बुतो वाला, वो बता क्यों नहीं रहा है? ये क्यों नहीं भाई बता आप रहा है? मिन दूनिल्लाह की तफसीर इजमा से बताइए। मैं जवाब दूंगा। पहले मेरे सवाल का जवाब दे। अच्छा 1 मिनट बोलूं? ये मेरे सवाल से फरार है। अच्छा बोलूं? बिल्कुल बोलेगा। अच्छा आप खामोश हो जा, खामोश हो जा साहब, आपने वक्त लिया है कि हम मिन दूनिल्लाह की अच्छा आप खामोश तो हो जा। आप उसको बताइए, इधर उधर मत भागिए। यूसुफ साहब, मैं बोल रहा हूँ यूसुफ साहब इसको खामोश करिए, ने सवाल किया जवाब दे दूं। मेरा जो सवाल है, मेरा जो हाँ तो जवाब देने दे, जवाब ले ले। ये कहा था पहले आप मिन दूनिल्लाह की तफसीर को जो है इजमा से साबित करिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि इसने ये कहा था कि हदीस में है बुतो वाला लफ्ज़, तो ये अरे तो अब मुझे बोलने तो दे। बता चल। अच्छा, इसने कहा कि मैंने कहा था कि हदीस में बुतों वाला लफ्ज है, लेकिन मैंने ये कहा चल तेरे बकौल काफिर का लफ्ज है। बताएगा लफ्ज़। 1 मिनट मुंह बंद। तेरे बकौल काफिर का लफ्ज है, तो तू मुझे काफिर की वो आयत कुरान में दिखा, मैं तुझे अपना आधा मिनट देता हूँ। तूने नहीं दिखाया। वजीर मोहम्मदी साहब, मिन दूनिल्लाह की तफसीर तूने नहीं दिखाया। अब मैं तुझसे चैलेंज करता हूँ, मिन दूनिल्लाह की तफसीर इजमा से बता। तोड़े आप मेरे सवाल का जवाब देगा। अरे मुझे 1 मिनट बोलने तो दे। बिल्कुल तू जवाब दे, मैं वक्त दे दूंगा। जवाब देते रहो, मुझे तो हंसी आ रही, तेरे मिर्ची लग गई। अरे तेरा पॉइंट झूठ पकड़ाना मैं। अच्छा यूसुफ साहब ईमानदारी से बताओ, तुम बीच में हो, अब हम सुनेंगे। झूठ पकड़ाना मैं। तू मैंने इसको बोला चलो बुतों के ताल्लुक से नहीं है, उसमें बट बुतों का नहीं है, ठीक है, काफिर का है। तो तू मुझे वो आयत बता कुरान में जो काफिरों की आयत को तुम मुसलमानों पे चस्पाते हो, वो आयत कौन सी है? पूछो इससे। वजीर मोहम्मदी साहब, आप पूछो कौन सी है वो? भाई काहे पीछा छोड़ा रहे हैं कुछ तो अपनी। आप में अगर जर्री से भी शर्म है, ये जर्री बराबर भी शर्म है। इसने बताया इसका मनहज कुरान हदीस इजमा कयास। मैं इसको चैलेंज देता हूँ, इसकी जुर्रियत को, तमाम अहलुल हदीस को मेरा चैलेंज है कि मिन दूनिल्लाह की तफसीर इजमा से बता दे। पूछे मेरे सवाल का कि मैं पूरी तेरी जुर्रियत को मेरा चैलेंज है। जमशेद अली कादरी शिकस्त लिख के दे देगा, शिकस्त, और जिंदगी में कभी मोबाइल पे बहसों मुबाहिसा नहीं करेगा। मिन दूनिल्लाह की तफसीर इजमा से दिखा दे, अजमा से दिखा दे। मिन दूनिल्लाह की तफसीर तू जिंदगी में नहीं दिखा सकता, वहाबी तू फंस गया यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह जमशेद अली कादरी ने इस हदीस से तुम्हें खारजी साबित किया। कुछ नहीं किया तू झूठा साबित हो गया। कुरान से हदीस से साबित किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। एक मिनट दोनों लोग चुप हो जाइए। वजीर मोहम्मदी साहब, जमशेद भाई खामोश हैं, आप मिन दूनिल्लाह की तफसीर इजमा से साबित कर दीजिए। बात खत्म। यूसुफ भाई, आप में यूसुफ साहब पानी पी लीजिए। वजीर मोहम्मद साहब पानी पी लीजिए पहले, तो बात। मैं बिल्कुल पानी पीऊंगा, मुझे प्यास लगी तो। मैं क्या पूछ रहा हूँ, जो आप अगर पहले पानी पी लीजिए, पसीना पोंछ लीजिए। आप में पसीना, मैं तो तेरे बकौल बोल रहा हूँ। चल उसमें बुत का लफ्ज नहीं है, काफिर का लफ्ज है, तो वो आयत बता देना जो काफिरों की आयत को तुम मुसलमानों पे चस्पाते हो। बताओ। करने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो किसी से हम तुम्हारे आला हजरत का जो है डिटर्जेंट पाउडर तो इसको लग गया। मैंने सवाल किया है। 1 मिनट यूसुफ साहब सुनो। यूसुफ साहब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यूसुफ साहब सारे शराब तोड़ दिए। और यूसुफ साहब उसूल वाला भी जी
میں نے اس کو کہا کہ میں اس کی پوری اہل حدیث کی جرریت کو یہ چیلنج کرتا ہوں، جمشید علی قادری بحث و مباحثہ کرنا فون پہ چھوڑ دے گا، اپنی شکست لکھ کے دے دے گا اگر یہ اجماع سے مجھے من دون اللہ کو یہ ثابت کر دے کہ یہ من دون اللہ جو ہے یہ بتوں کے لیے ہے یا نہیں۔ ہماری جماعت کے سنی کا شعر جمشید علی قادری صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ غیر مقلد کا مناظرین وزیر محمدی صاحب یہ من دون اللہ کی تفسیر کو اجماع سے ثابت کریں۔ اس نے بولا کہ اس کے نزدیک 3 چیزیں، قرآن حدیث اجماع قیاس، 4 چیزیں، نہ تو یہ اجماع کو مانتا ہے نہ یہ قیاس کو مانتا ہے، یہ صرف اپنے جرجس کو مانتا ہے، جرجس کو۔ جمشید قادری بتاتا کیوں نہیں اتنا گھبراتا کیا اتنا ڈرتا کیوں؟ ابے الحمدللہ تجھے خارجی ثابت کر دیا۔ دیکھیں سامعین، بخاری شریف میں جو حدیث مبارکہ ہے کہ جو لوگ کافروں کے تعلق سے نازل ہونے والی آیتوں کو مسلمانوں پہ چسپاتے ہیں وہ خارجی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، یہ آج کے 200 سال پہلے کے جو اہل حقو ہیں، ان کے جو پرانے عالم ہیں، انہوں نے کبھی نہیں چسپایا، اور چسپایا بھی تو وہ خارجی ہوئے۔ اور اس حدیث کی روشنی میں یہ 200 سال کے پہلے اہل حقو آج خارجی ثابت ہو گئے۔ یہ ابھی تک ثابت نہیں کر پائے کہ قرآن میں کون سی آیت ہے کافروں کے تعلق سے۔ ان وہابیوں کو اپنے بزرگوں کے دامن میں ہی پناہ نہیں دی گئی ہے، ان کے کسی عالم نے من دون اللہ کی تفسیر کو بزرگوں پہ نہیں چسپایا۔ چلو، حافظ ابن کثیر نے کہا ہے من دون اللہ جہاں پہ آتا ہے وہ تو آیت بتوں کے تعلق سے، لیکن یہ سوال کا جواب بتوں کے تعلق سے ہے۔ اختیار کر رہے ابے جھنڈو چمن پراس یہ بریلی کتے تم نے پکڑ رکھتے ہیں۔ چمن پراس کھا تو جا کر، تیرے بس کی بات نہیں ہے جمشید علی قادری سے بات کرنا۔ اب میں ابھی من دون اللہ کی تفسیر عوام کے سامنے اجماع سے ثابت کر ہاں سنو ایک یوسف بات، صاحب، آپ یوسف نے بھائی، اگر ذرے تو بھی شرم ہے، ارے یوسف بھائی تو جو یوسف اصول بھائی، طے کیے ان اصول پر چلو نا۔ اصول بھائی کے او حق یوسف میں بھائی، کی طرف سے بول رہے ہیں نا، آپ کی طرف سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اجماع کو مانتے ہیں تو من جو دون میں نے اللہ آدھا منٹ مطالبہ کیا تو نے میرا آدھا منٹ برباد کر دیا اور تیری شکست ہو گئی۔ پکارا نہیں کرنا، لیکن اصول توڑ رہے چل ایک کام کر، میں تجھے 2 منٹ دے رہا ہوں، میرا ایک ہی مطالبہ ہے کہ تو نے کہا کہ ہم من دون اللہ کی آیت کو فٹ کرتے ہیں انبیاء اولیاء، تو نے اپنے منہ سے کہا، اس نے اپنے منہ سے کہا نا؟ ہاں، تو میرا یہ مطالبہ ہے کہ تیرے منہ کی بات کو میں لے رہا ہوں، من دون اللہ کی تفسیر اجماع سے ثابت کر دے اور تو جیت جا، بتائے گا بتوں والا لفظ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تو جیت جا۔ یہ سن، تو من دون اللہ کی تفسیر اجماع سے ثابت کر دے تو خود شکست کھا جائے گا۔ تجھے پتا ہے کہ من دون اللہ کا معنی ہے کہ یہ آیت کافروں کے لیے ہے۔ نہ قبول پا رہے ہیں، یہ من دون اللہ کی تفسیر اجماع سے کرنے سے کترا رہے ہیں۔ ٹکرا اس لیے رہا ہے، یہ اپنے اصول سے خود پھنس جائے گا وہاں بھی۔ میں بول رہا ہوں اچھا سنو، ایک چیز اور سنو یوسف صاحب، اس کا طالب الرحمان کہتا ہے جو اجماع کو مانے وہ شیطان ہے۔ تو اہل حدیث شیر کے سوال کا جواب نہیں دے رہا، میں نے جو پہلے ابے اہل حدیث شیر سالے پھسڈی نمبر 1 کہ تو نے جو بر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ خارجی لوگ ہیں جو قرآن میں کافروں کے اوپر نازل ہونے والی آیت کو انبیاء اولیاء پہ چسپاتے ہیں، تو میں تجھ سے وہی کہہ رہا ہوں، وہ آیت کون سی ہے؟ تو کون سی آیت ہے؟ تو بتوں والا لفظ کیوں نہیں بتوں والا لفظ تو نے خود بتا دی نا، من دون اللہ۔ تو نے اپنے منہ سے کہا کہ ہم من دون اللہ والی آیت کو فٹ کرتے ہیں، تو من دون اللہ کا تفسیر بتا دے بس۔ بتوں والا لفظ تو بتوں کا لفظ ہے نا من دون اللہ، اس کی تفسیر بتا دے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر، اب اللہ کو چھوڑ کر مطلب ہوتا ہے بت جو آج کی تاریخ میں لوگ مندروں میں جاتے ہیں نا بتوں کی پوجا کرنے، وہ بت صاحب مزار اس سے مراد نہیں ہے۔ اگر صاحب مزار مراد ہے تو تیرے باپ ابن تیمیہ نے فتویٰ مجموعہ میں لکھا ہے کہ اللہ کے ولی کا اور اللہ کے نبی کا قرب حاصل کرنا، وسیلہ لینا کوئی شرک اور کوئی حرام نہیں ہے۔ بے شک ماشاء اللہ۔ الوداع والنہایہ میں تیرے ابن کثیر نے لکھا کہ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ امامہ میں گئے اور جنگ امامہ میں جب کفاروں نے یا اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو خالد بن ولید کی جماعت نے لگایا یا محمد المدد، اور وہ 1700 کلومیٹر دور سے جنگ لڑ رہے تھے، 1700 کلومیٹر دور، جتنے بریلوی سارے وہیں سے نعرہ لگایا یا محمد۔ باب الوداع والنہایہ میں اس کو ابن کثیر لاتا ہے، ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر اٹھا، اس کے اندر قرآن کی تفسیر میں صاف کہتا ہے کہ یہ آیت بتوں کے تعلق سے ہوتی ہے، جو من دون اللہ کی ہوتی ہے نا وہ بتوں کے تعلق سے ہوتی ہے، وہ کافروں کے اوپر نازل کی جائے گی، مسلمانوں کے اوپر نہیں۔ یہ احمد رضا خان کی طرح یہ کوئی اصولاً بات نہیں ہے،
اب یہ صرف گالی بکے گا. تم دبا کر بھاگ رہے. اس کی پوری جدیت کو میرا چیلنج ہے, من دون اللہ کی تفسیر کر دے اجماع سے. عبد الوہاب نجدی کے شعر ہیں تو بتائیے نا, من دون اللہ کی تفسیر اجماع سے ثابت کریے نا. من دون اللہ کی تفسیر اگر یہ بتا دے اجماع سے, یوسف صاحب سنو, اگر یہ من دون اللہ کی تفسیر اجماع سے بتا دے, محدث کے اجماع سے, جمشید علی قادری شکست لکھ کے دے دے گا اور کبھی زندگی میں بحث و مباحثہ نہیں کرے گا. ماشاء اللہ, کیا چیلنج ہے. آپس میں ہی آپس میں لے رہے, آپس میں مذاق کر لے رہے. ابے جا کے سو جا پہلے وہابڑے مشرک. الحمدللہ میں نے تجھے اس حدیث کی روشنی میں خارجی ثابت کر دیا. خارجی عوام فیصلہ کر لیں گے کہ یہ اہل حقوق کتنے بڑے اللہ کے رسول کے گستاخ ہیں. الحمدللہ میں نے ثابت کر دیا, عوام فیصلہ کر لیں گے.